physical properties, boiling point, that is over. Solubility in water, that is over yesterday. Then after chemical properties. In chemical properties, 7 chemical properties are here. Out of 7 chemical properties, first, that is acylation, was over yesterday. Now we need to start benzoylation, carbylamine, diazotization, Hinsberg, ES, and last we will discuss the basic character. So now I'm going to start the benzoylation. First of all, acylation. Yesterday we had discussed that what is acylation. When any aliphatic or aromatic primary or secondary amine react with acid chloride, acid anhydride, or ester, then it form amide. This reaction is known as acylation. Now in acylation, 3 equations will be there, and then after why in acylation the base is required, why we are using pyridine in acylation. Then reason I had informed you because pyridine is a stronger base than amine, so it remove the effect of HCl which form in the product. जो product में HCl बनता है इसके effect को cancel करता है because HCl provide the acidic medium to the reaction, and in acidic medium the reaction can be proceed in backward direction. So this base neutralize the HCl, so it prevent the reversibility of reaction. ये reaction की reversibility को prevent करता है, उसको रोकता है. This I informed you yesterday. Now next one is benzoylation. Benzoylation is very important. This year in board examination this was there. In benzoylation and acylation, just one difference is there. In acylation, we can use acid anhydride and ester with aliphatic aromatic primary or secondary amine. In benzoylation, there will be benzoyl chloride. Benzoyl word I informed you. Benzoyl means benzene contain CO. Benzene contains CO. This is called benzoyl. ठीक है? Remember this. One is here. Benzene contain CH2. एक है benzene contain CH2. Benzene contain CH2. This is benzyl. ये आपको बताया गया था बेंजिल ZYL. And benzene contains CO. This is called benzoyl. Benzoyl. So here it is benzoyl. That's why the word is there benzoylation. Benzoylation से ही समझ में आ जाना चाहिए रिएक्शन विथ बेंजोइल क्लोराइड. लेकिन किसका रिएक्शन? अमाइन. सो व्हेन अमाइन रिएक्ट विथ बेंजोइल क्लोराइड, जब अमाइन बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है, सो इट फॉर्म बेंजामाइड. Benzamide means benzene contains CONH. This is benzamide. In acylation, what was the product? Product was amide. Acylation में product था amide, and here the product will be benzamide. So what will be benzoylation? As like this here the question was there, explain the benzoylation, define the benzoyl. When any amine react with benzoyl chloride, then it form benzamide. तब ये बनाता है benzamide. This reaction is called benzoylation. And after this, next, that is third chemical property, carbylamine reaction. So as the word it is showing carbylamine reaction, it is having one more name. इसका एक और नाम है, that is isocyanide. Remember the name, isocyanide test.
isocyanide test. Carbyl amine reaction is also known as isocyanide test. कार्बिल अमाइन रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं. Now, first of all, this reaction is only and only given by primary aliphatic and aromatic amine. केवल फर्स्ट डिग्री अमाइन ये रिएक्शन देता है, चाहे वो फर्स्ट डिग्री एलिफेटिक हो, चाहे वो फर्स्ट डिग्री एरोमेटिक. सेकेंड डिग्री अमाइन इज नॉट गिविंग दिस रिएक्शन. थर्ड डिग्री अमाइन इज नॉट गिविंग दिस रिएक्शन. रिमेंबर दिस. कार्बिल अमाइन रिएक्शन इज only and only shown by primary aliphatic and primary aromatic. Overall we can say only first degree. केवल फर्स्ट डिग्री अमाइन ही ये रिएक्शन देता है, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री ये रिएक्शन नहीं देता है. नाउ नेक्स्ट, व्हाई इट इज कॉल्ड isocyanide test? See the word isocyanide test. So test is here because this reaction is used to distinguish. This reaction is used to distinguish between primary and secondary, primary and tertiary amine. In your syllabus, one more type of question is there. एक और क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है, that is distinguish the following with suitable reaction. Distinguish the following with suitable reaction. इनको डिस्टिंग्विश करिए. केमिकल इक्वेशन से डिस्टिंग्विश करना होता है, स्टेटमेंट से नहीं. जो आप डिफरेंसेस लिखते हो यहाँ पे डिफरेंसेस लिखना नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन लिखना होता है. एंड डिस्टिंग्विश जैसे कर दिया कि वन इज प्राइमरी अमाइन, वन इज सेकेंडरी अमाइन. सो डिस्टिंग्विश विथ रिएक्शन. सो फॉर दैट यू विल राइट दिस रिएक्शन. आप ये रिएक्शन लिख करके दिखाएंगे कि यहाँ पे प्राइमरी अमाइन है, सो ये प्रोडक्ट बनाएगा. और यहीं पे यू विल राइट द सेकेंडरी अमाइन इन द सेकेंड रिएक्शन, दैट इज R2NH. देन इट विल नॉट फॉर्म द प्रोडक्ट, नो रिएक्शन. सेकेंडरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं देगा. RNH2 है तो प्रोडक्ट बना रहा है, R2NH है प्रोडक्ट नहीं बनाएगा. सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश primary from secondary amine and primary from tertiary amine. I am not saying separating. मैं सेपरेट करने को नहीं कर रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड मिक्स है उसको सेपरेट करना. आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम सेइंग कि दो अमाइन आपको दे दिया गया, आपको नहीं पता है कौन प्राइमरी है कौन टर्शियरी है. यू वांट टू आइडेंटिफाई कि विच वन इज प्राइमरी विच वन इज टर्शियरी. सो फॉर दैट वी विल यूज दिस रिएक्शन इन विच जब दोनों प्राइमरी और टर्शियरी दोनों में इस रिएक्शन के रिएजेंट को ऐड करके प्रोसेस करेंगे. सो प्राइमरी जो भी होगा दैट विल गिव द प्रोडक्ट एंड सेकेंडरी या टर्शियरी जो भी होगा दैट विल नॉट गिव द प्रोडक्ट. सो दिस रिएक्शन इज ओनली एंड ओनली शोन बाय प्राइमरी अमाइन, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट. नाउ व्हाट इज कार्बिल अमाइन रिएक्शन? So when aliphatic or aromatic primary amine heated with, heat करना है, and this you will perform in your lab also, heated with chloroform CHCl3. remember this, chloroform का formula है CHCl3 and most of the students are writing CH3Cl. 80% स्टूडेंट यही लिखते हैं CH3Cl. सो रिमेंबर क्लोरोफॉर्म इज CHCl3 नॉट CH3Cl. ठीक है. सो व्हेन एनी प्राइमरी अमाइन, केवल प्राइमरी अमाइन की बात हो रही है, यू कांट राइट हियर एनी अमाइन. अगर आपने लिखा कि व्हेन एनी अमाइन, सो दैट विल बी रॉन्ग. वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एनी अमाइन का मतलब सेकेंडरी टर्शियरी कोई भी हो सकता है. सो व्हेन एनी प्राइमरी अमाइन, एनी मतलब एलिफैटिक एरोमेटिक, या डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखिए व्हेन एनी एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक KOH. इथेनॉलिक KOH means first of all we will take the
इन इथेनॉल वी विल ऐड द KOH, इथेनॉल में हम KOH ऐड करेंगे, देन वी फॉर्म द सॉल्यूशन, तब हम सॉल्यूशन बनाएंगे। दैट सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड इथेनॉलिक KOH, एक्वस KOH नहीं लेना है, अल्कोहलिक KOH। सो व्हेन प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइन heated with chloroform and ethanolic KOH, then it form isocyanide और कार्बिल अमाइन। इसी प्रोडक्ट को कहा जा रहा है, NC लगा है तो आपको पता ही है, IUPAC नेम आइसोसाइनाइड हो गया। एंड कार्बिल अमाइन, क्योंकि अमाइन NH2 होता है, NH2 में से H हट करके कार्बन आ गया है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कार्बिल अमाइन। सो कार्बिल अमाइन मतलब आइसोसाइनाइड की बात कर रहा है। इन दिस रिएक्शन व्हाट विल बी हैपन, सिंपल, Cl will be go with K to form KCl, H, this H will go with OH to form H2O, and this C will go with N to form NC, that is isocyanide. This isocyanide is having foul smell, means unpleasant smell. It is having unpleasant smell. So what is carbylamine? This is very important reaction. That's why I'm repeating it again and again. So what is carbylamine reaction? So when any aliphatic or aromatic amine, primary amine, aliphatic or aromatic primary amine heated with chloroform in KOH, then it form isocyanide or carbylamine which have foul smell. And then after this equation will be there, and below this in note you will write, note में आप लिखेंगे that this reaction is also known as isocyanide test, and it is used to distinguish between primary and secondary with primary amine with secondary and tertiary amine। प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन से अलग करने में हेल्प करता है। सो दिस इज द फर्स्ट कार्बिल अमाइन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट सी, यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन दिया है जो मैं बात कर रहा था, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं देता है। इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, और इसका यूज किस लिए करते हैं, प्राइमरी अमाइन को टेस्ट करने के लिए कि विच वन इज प्राइमरी अमाइन। सो दिस यू कैन राइट इन नोट, आप इसको नोट में लिख सकते हैं पूरा चाहे तो। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड और डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए एसाइलेशन कल कंप्लीट हो गया था, बेंजोइलेशन अभी हो गया, कार्बिलमाइन हो गया। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं डाईएजोटाइजेशन और रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। सो डाईएजोटाइजेशन, अब इसमें क्या स्पेशल है, वंस अगेन एनीवन प्लीज गिव रिस्पॉन्स, स्क्रीन एंड वॉइस बोथ आर क्लियर? Yes, both clear, sir. So now we are going to discuss डाईएजोटाइजेशन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन में आपको क्या याद रखना है, पहला इंफॉर्मेशन कि डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड मींस ऑल द थ्री क्लास ऑफ अमाइन। जैसे अभी आपको बताया कार्बिल अमाइन इज ओनली फॉर प्राइमरी, केवल प्राइमरी के लिए है, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं देता है। बट nitrous acid, reaction with nitrous acid means diazotization, this reaction is shown by primary, secondary, tertiary all three amines। इस रिएक्शन को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों अमाइन शो करते हैं। बट इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में केवल प्राइमरी अमाइन से ही रिएक्शन है, सेकेंडरी टर्शियरी से नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है, केवल प्राइमरी है, एलिफैटिक और एरोमेटिक, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं है।
बट इट डजंट मीन्स कि सेकेंडरी टर्शियरी नहीं दिया है तो ये रिएक्शन नहीं करता, ऐसा मतलब नहीं है। इट इज रिटन क्लियरली हियर कि all the three class of amines are react differently with nitrous acid। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों टाइप के अमाइन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करते हैं। सो दिस रिएक्शन वी कांट यूज टू सेपरेट प्राइमरी मींस टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन। इस रिएक्शन का यूज हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए नहीं कर सकते हैं। नाउ now start the reaction when primary एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक कोई भी हो, दोनों आपके में प्राइमरी ही है। व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन और प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, ठीक है, रिएक्ट विथ नॉट हीटेड विथ, यहाँ हीट नहीं होता है। फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरेन सैंड मेयर रिएक्शन में बताया जा चुका है कि दिस रिएक्शन इज टेक्स प्लेस 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 273 to 278 केल्विन। तो केल्विन में देख करके ये मत समझिएगा कि हीट नहीं करना है। इट इज 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, कोल्ड कंडीशन में ठंडा करना है, इसको बर्फ में रख के ठंडा करना और रिएक्शन कराना है। सो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड हम पहले से बना बनाया केमिकल नहीं लेंगे। रिमेंबर, वी विल नॉट टेक द नाइट्रस एसिड डायरेक्टली कि हम लैब में गए HNO2 देखे, HNO2 वहां से उठा लिए। नो, वी विल प्रिपेयर द नाइट्रस एसिड जस्ट सेम टाइम। सो व्हाट वी विल डू दिस, इट इज नॉट प्रेजेंस, ये प्रेजेंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल NaNO2 और HCl को हम रिएक्ट कराएंगे, मिक्स करेंगे। मींस in one test tube we will take the NaNO2, in another test tube we will take the HCl and then we will mix together in cold condition। दोनों को बर्फ में रख देंगे, ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, देन दोनों को मिक्स कर देंगे। जो मिक्स करेंगे दैट सॉल्यूशन वी विल ऐड विथ फर्स्ट डिग्री अमाइन, आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक। सो फिर से देख लीजिए, यहाँ पे HNO2 लिखा जरूर होता है, तो इसका मतलब ये कंफ्यूजिंग रिएक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2HCl, ये इन प्रेजेंस नहीं है। रिमेंबर दिस, दैट इज नॉट कैटलिस्ट। ठीक है, इसमें रिएक्शन क्या होता है, वी विल टेक द 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक में NaNO2 ऐड करेंगे, एक में HCl ऐड करेंगे, एक में अमाइन ऐड करेंगे। All 3 we will place in ice box or in freezer to cool down the solution. When it reach the temperature that is 0 to 5 degree, then means it becomes cold, not at room temperature। रूम टेम्परेचर पे नहीं करना है, 30 डिग्री 40 डिग्री पे नहीं, 0 to 5 डिग्री पे, तो बर्फ में रखना है। देन आफ्टर पहले NaNO2 और HCl के सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करना है। जो सिंगल मिक्सचर मिलेगा उस मिक्सचर को फिर हमको ऐड करना है प्राइमरी एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइन में। जब ये प्राइमरी एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइन में मिक्स हो जाएगा, देन जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी आवर मेन प्रोडक्ट, वो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा ठंडे में। अगेन आई एम सेइंग नॉट एट रूम टेम्परेचर। सो the product will be this RN2Cl. This is called aliphatic diazonium salt, and in aromatic it forms C6H5N2Cl, which is called aromatic diazonium salt or benzene diazonium chloride BDC। फर्स्ट चैप्टर में आपको मिला था हेलो एल्केन हेलो एरेन में, हेलो एरेन के प्रिपरेशन में, send me a reaction में। So BDC, so aliphatic is form aliphatic diazonium salt
and aromatic is formed BDC, benzene diazonium chloride. देखिए टेम्परेचर इसको मत समझिएगा कि हीट है, ठीक है, इट इज कोल्ड कंडीशन. नाउ द प्रॉब्लम इज हियर कि एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट इज अनस्टेबल. ये अनस्टेबल होता है. ऐसा देखा गया कि ये बनता तो है बट इट इज नॉट स्टेबल. बट एरोमेटिक इज स्टेबल. एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक इज स्टेबल. एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है, एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होता है. दिस एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर इमीडिएटली. जैसे ही बनता है ये तुरंत वाटर से रिएक्ट कर जाता है. एंड बाय रिएक्शन विथ वाटर, जैसे ही वाटर से रिएक्ट करता है, इट गिव द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज एल्कोहल. ये फाइनल प्रोडक्ट क्या देता है? एल्कोहल. सो in diazotization means reaction with nitrous acid with aliphatic amine. एलिफैटिक अमाइन से नाइट्रस एसिड का रिएक्शन कराने पे फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलता है एल्कोहल. डाइजोनियम सॉल्ट नहीं मिलता है. डाइजोनियम सॉल्ट बनता है but that is unstable, so it immediately react with moisture or water and give the alcohol as final product. So एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट का फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल होता है. बट एरोमेटिक अमाइन का फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो डाइएजोनियम सॉल्ट होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. सो वंस अगेन देख लीजिए, this method is means this reaction is used to distinguish between एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमाइन. इस रिएक्शन का यूज एलिफैटिक और एरोमेटिक को अलग करने के लिए या डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्या सेपरेट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए, कि आई हैव गिवन यू टू अमाइंस इन वन टेस्ट ट्यूब, देयर इज एलिफैटिक, अनदर टेस्ट ट्यूब देयर इज एरोमेटिक, एंड आई डोंट नो कि कौन एलिफैटिक है कौन एरोमेटिक है. यू वांट टू आइडेंटिफाई कि कौन सा एलिफैटिक है कौन सा एरोमेटिक है. सो बोथ विल अंडरगो रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड. दोनों नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेंगे विच इज आल्सो कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन, एंड the aliphatic will form the alcohol as a product and aromatic will form the BDC. तो जिस टेस्ट ट्यूब से BDC बनेगा it means that is aromatic, और जिस टेस्ट ट्यूब से alcohol बनेगा that is aliphatic. So how you will write this reaction? So your heading will be there, diazotization और reaction with nitrous acid. आपकी हेडिंग ये रहेगी. डाई जो आपके कॉन्सेप्ट मैप में बना हुआ है, डाइएजोटाइजेशन और रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड. देन आफ्टर you will write this कि all the three class of amine, that is primary, secondary, tertiary, are react with nitrous acid in different way, but in class 12 syllabus only the reaction with primary amine is given, full stop. Nitrous acid react with primary amine in two different way with aliphatic and aromatic amine. एलिफैटिक अमाइन से अलग तरीके से रिएक्शन करता है, एरोमेटिक अमाइन से अलग तरीके से. नाउ फर्स्ट सब हेडिंग विल बी देयर, रिएक्शन विथ प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन, या फर्स्ट नंबर विल बी देयर, नंबर ले लीजिए एंड राइट दिस स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट लिखिए कि व्हेन प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड देन इट फॉर्म एलिफैटिक डायजोनियम salt which is unstable, which immediately react with moisture or water and form the alcohol as final product and release N2, and this equation. And next second number, यहाँ second number रहेगा, you will write when primary aromatic amine react with nitrous acid in cold condition, then it form diazonium salt which is stable, and then after this equation, ये equation फिर बना देंगे, लिख देंगे. Then after your diazotization is over, तब आपका diazotization क्या हो जाएगा? Complete हो जाएगा. Now next is there reaction with
aryl sulfonyl chloride. Aryl word is written here because aromatic, and in your syllabus the aromatic compound is benzene. So at the place of aryl you can write benzene, means benzene sulfonyl chloride. Now see, what are the names that I had written here? It is reaction with benzene sulfonyl chloride, one name. बेंजीन के जगह एरिल भी लिखा है, सेकेंड नेम. एंड हिंसबर्ग टेस्ट is the third name. Hinsberg test is the third name. So you will write all three headings: Hinsberg test, reaction with aryl sulfonyl chloride. So in future there will be no any confusion कि एरिल है तो क्या मतलब है, बेंजीन है तो क्या मतलब है, और हिंसबर्ग है तो क्या मतलब है. ओके, नाउ व्हाट इज, अब ये हिंसबर्ग टेस्ट है. वी आर गोइंग टू डिस्कस हिंसबर्ग टेस्ट. हिंसबर्ग टेस्ट में जो रिएजेंट यूज होता है, जैसे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज होता है दैट इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएजेंट. सो सेम एज in Hinsberg test the reagent is used that is called Hinsberg reagent. So question ये पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम 95% टाइम एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है. जैसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछना होता है, एग्जामिनर ये पूछता है कि व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, हैव यू हर्ड अबाउट द हिंसबर्ग टेस्ट, क्या आपने हिंसबर्ग टेस्ट पढ़ा है. या तो वो अमाइन से शुरू करेगा कि आपने अमाइन चैप्टर पढ़ा है, हाँ. अमाइन चैप्टर में आपने हिंसबर्ग टेस्ट पढ़ा है, हाँ. हिंसबर्ग टेस्ट में हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट. सो सी, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl is called Hinsberg reagent. Benzene sulfonyl chloride is the name and formula is C6H5SO2Cl, and the structure is C6H5 means benzene ring having SO2 and Cl. SO2 and Cl. This is the structure of benzene sulfonyl chloride. So either structure will be there, you can draw the structure, either formula will be asked, you can write the formula, or the name benzene sulfonyl chloride. So this is Hinsberg reagent. Hinsberg reagent. First information. For Hinsberg test, we require the Hinsberg reagent that is C6H5SO2Cl or benzene sulfonyl chloride. Now, another information, this reaction means Hinsberg test is given by or shown by primary and secondary amine. प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन ये रिएक्शन देता है, बट टर्शियरी अमाइन इज नॉट गिविंग दिस रिएक्शन. थर्ड डिग्री अमाइन ये रिएक्शन नहीं देता है. प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन आर गिविंग दिस रिएक्शन, बट थर्ड डिग्री अमाइन इज नॉट गिविंग दिस रिएक्शन. थर्ड डिग्री अमाइन ये रिएक्शन नहीं देता है. Remember this, third degree amine is not giving this reaction. So this reaction to distinguish between primary and tertiary amine, secondary and tertiary amine. प्राइमरी सेकेंडरी इससे डिस्टिंग्विश नहीं, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ये रिएक्शन दे रहा है. सो प्राइमरी सेकेंडरी डिस्टिंग्विश नहीं होगा. लेकिन इफ देयर वर टू अमाइन, दो अमाइन है जिसमें एक प्राइमरी है, एक थर्ड डिग्री है, या एक सेकेंडरी है, एक थर्ड डिग्री है, तो प्राइमरी को थर्ड डिग्री से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सेकेंडरी को थर्ड डिग्री से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन से हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सो वंस अगेन, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस क्या क्या हैं. फर्स्ट इंफॉर्मेशन, एरियल सल्फोनिल क्लोराइड
is also known as benzene sulfonyl chloride or Hinsberg reagent. What is Hinsberg reagent? That is benzene sulfonyl chloride. What is its formula? C6H5SO2Cl. What is its structure? Benzene ring पे S, S पे O, O and Cl. Next, this reaction is only and only shown by primary and secondary amine. Tertiary amine will not give this reaction. Tertiary amine ये reaction नहीं देता है. Now what is हिंसबर्ग टेस्ट? सो तीन है, देखिए ये प्राइमरी अमाइन से है, दिस इज विथ प्राइमरी अमाइन. ये हिंसबर्ग रिएजेंट है बेंजीन पे SO2Cl. एंड देन आफ्टर दिस इज सेकेंडरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन से है. दिस इज प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन से है. एंड टर्शियरी अमाइन से रिएक्शन नहीं देता है. सो पहले आया primary amine, very simple reaction. So when Hinsberg reagent react with primary amine, first degree amine से, तो primary amine से H will be removed and Hinsberg reagent से Cl will be removed. Primary amine से H निकलेगा, निकलेगा. सो एच हिंसबर्ग रिएजेंट के सल्फर की एक वैलेंसी फ्री होगी और प्राइमरी अमाइन के नाइट्रोजन की. सो दे विल बी कंबाइन विथ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे. सी द बॉन्ड, सल्फर और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बन जाएगा. दैट विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा. एंड बाई प्रोडक्ट विल बी SC एंड इट्स नेम, इसका नाम. सो मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा SO2NH. तो CONH2 होता है तो अमाइड कहते हैं, और SO2NH को कहते हैं सल्फोनामाइड. SO2NH इज कॉल्ड SO2NH में जिस साइड नाइट्रोजन से एल्किल ग्रुप अटैच है दैट इज साइड चेन. सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन N इथाइल, N से इथाइल अटैच है. एंड जिस साइड सल्फर से ग्रुप अटैच है दैट इज मेन चेन, वो मेन चेन है. सो N इथाइल, N नाइट्रोजन से इथाइल अटैच है, बेंजीन मेन ग्रुप है, सल्फोनामाइड फंक्शनल ग्रुप है. N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, this will be the product. So what will be your statement? First number, when Hinsberg reagent react with primary amine, then it form N-ethyl benzene sulfonamide. बेंजीन, देखिए सल्फोनिल अमाइड भी लिखा है, सल्फोनिल अमाइड में YL हटा के अमाइड हो गया तो सल्फोनामाइड भी लिख सकते हैं. ठीक है. दिस प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन एल्कली, ये प्रोडक्ट एल्कली मतलब बेस में सॉल्युबल होता है. नाउ अभी केवल इतना, अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे. सेकंड, इफ सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, तो सेम विल बी हियर, Cl और H रिमूव होगा, बोथ विल बी कंबाइन, दोनों कंबाइन हो जाएंगे एंड फॉर्म द प्रोडक्ट. वही प्रोसेस यहाँ पे भी H और Cl चला गया. नाउ इट्स नेम विल बी, फिर से वही, जो N से अटैच होगा वो साइड चेन, तो N से दो अटैच है इथाइल इथाइल, सो N डाई इथाइल एंड रेस्ट इज बेंजीन सल्फोनामाइड. दिस विल बी इनसॉल्युबल इन एल्कली, ये जो प्रोडक्ट बना है NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, दिस विल बी इनसॉल्युबल इन एल्कली, ये एल्कली में इनसॉल्युबल होता है. सो क्वेश्चन ये पूछता है कि प्राइमरी अमाइन जब हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनाता है दैट इज सॉल्युबल इन एल्कली. बट सेकेंडरी अमाइन जब हिंसबर्ग से रिएजेंट से रिएक्ट करता है, जो प्रोडक्ट बनाता है दैट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली. व्हाई, व्हाट इज द रीजन? तो रीजन ध्यान से देखिए. इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन the hydrogen atom is present with nitrogen.
जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी बात हो रही है। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन पे प्रेजेंस है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, दैट्स वाई, इसलिए ये सॉल्युबल होता है। बट सेकेंडरी अमाइन में जो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एटम नहीं है, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम नहीं है, सो इसलिए ये सॉल्युबल नहीं होता है। ये एक क्वेश्चन हुआ कि अगर पूछेगा कि द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट इज सॉल्युबल इन एल्कली बट product of secondary amine with Hinsberg reagent is insoluble in alkali. Why? Because in product of primary amine with Hinsberg reagent, hydrogen atom is present at nitrogen. That's why it is soluble in water. But in product of secondary amine with Hinsberg reagent, hydrogen atom is not present at nitrogen. That's why it is not soluble in alkali. ये एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा जो आपको बताएगा कि टर्शियरी अमाइन नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। टर्शियरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता है, क्यों? रीजन क्या है? सो सी, प्राइमरी अमाइन क्यों रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि इसके पास प्राइमरी अमाइन के पास हाइड्रोजन है, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जा रहा है। सेकेंडरी अमाइन के पास भी हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जा रहा है। बट टर्शियरी अमाइन में हाइड्रोजन नहीं होता है, केवल एल्किल ग्रुप होता है। सो थर्ड डिग्री अमाइन इज नॉट हैविंग हाइड्रोजन। थर्ड डिग्री अमाइन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अंडरगो रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। सो दो क्वेश्चन है कि ये सॉल्युबल क्यों नहीं होता है, तब तो आप प्रोडक्ट में बताएंगे कि प्रोडक्ट में नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये वाला सॉल्युबल नहीं है। लेकिन पूछेगा थर्ड डिग्री क्यों रिएक्ट नहीं करता, तब आप कहेंगे थर्ड डिग्री अमाइन में हाइड्रोजन नहीं है। एंड देन जो आपको बताया गया कि इस प्रॉपर्टी जिसमें कि वो थर्ड डिग्री से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। इस प्रॉपर्टी का यूज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को अलग करने में किया जाता है। एंड नेक्स्ट दैट इज वी कैन, इसमें स्पेशल कंडीशन है कि वी कैन सेपरेट आउट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को सेपरेट भी कर सकते हैं। अभी तक मैं बोल रहा था सेपरेट करने के लिए नहीं होता है, डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है। बट हिंसबर्ग reagent we can use to separate the primary secondary and tertiary amine also. मीन्स अगर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन एक में मिक्स हो गए हैं, सो वी कैन सेपरेट आउट, तो हम उनको अलग भी कर सकते हैं। रिमेंबर, सो हिंसबर्ग टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, and because the formula and the name is slightly complicated for students, आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बट अगर इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देख लें